Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Kuratulan and I am here with the 5th lecture of science for class 7th. Today we are going to start another chapter from biology portion, and that is transport in plants. And in this chapter we are going to discuss the following topics: transport systems, which includes xylem and phloem, structure of a plant stem, structure of a plant root, diffusion, osmosis, transpiration, and translocation. Like animals, plants are also multicellular organisms, and they need a transport system to carry food, water, and gases to various cells and organs. However, the movements made by plants are usually very slow, so they don't need a heart or a similar pumping system. Instead, they have a continuous circulatory system which transports material upward and downwards. And these two transport systems are xylem and phloem. जिस तरह से एनिमल्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि बहुत सारे सेल्स से मिलकर बने हैं, इसी तरह से प्लांट्स भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं और उनकी बॉडी में फूड, वाटर एंड डिफरेंट गैसेस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए सिस्टम की ज़रूरत है. वो सिस्टम हार्ट की तरह काम तो नहीं करता और ना ही डाइजेस्टिव सिस्टम की तरह, जिसको आप अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, क्योंकि एनिमल्स को बहुत तेज़ी से मूव करना होता है और उन्हें बहुत तेज़ी से एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए एनिमल्स के ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स बहुत फास्ट होते हैं. जबकि प्लांट्स इतनी तेज़ी से मूव नहीं करते, तो इनके ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स आहिस्ता आहिस्ता काम करते हैं. प्लांट्स में दो ट्रांसपोर्ट सिस्टम हैं जो कि xylem और phloem कहलाते हैं. In almost all land plants, the up transport system consists of xylem vessels, which carry water from the soil through the roots and up the stem. Xylem are long, empty, dead cells which form tubes called vessels. Xylem vessels move water and dissolve mineral salts from roots to the leaves. Plants में वाटर की ट्रांसपोर्टेशन का काम xylem vessels करते हैं. xylem vessels लॉन्ग, एम्प्टी और डेड सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं. xylem vessels का काम ये है कि वो रूट्स के ज़रिए वाटर अब्जॉर्ब करके उसको ऊपर की जानिब यानी कि लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करते हैं. The down system is made of long, thin-walled tubes called phloem cells. The phloem system transport food from the leaves where it is made to the parts of the plant where it is used or stored. They consist of living cells arranged end to end and move food substances from leaves to the rest of the plant. अभी हमने ये पढ़ा कि xylem vessels जो कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं वो डेड सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, लेकिन phloem cells जो हैं वो लिविंग सेल्स होते हैं. और phloem का काम डाउनवर्ड होता है, यानी कि लीव्स में फोटोसिंथेसिस के ज़रिए जो फूड प्रिपेयर होता है, phloem vessels उसको लीव्स से लेकर पूरे प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाते हैं जहां जहां उसकी ज़रूरत होती है. Now we are going to discuss the structure of a plant stem, and in this structure we are going to discuss the arrangement of vascular bundles. तो बच्चों, अब हम ये डिस्कस करेंगे कि प्लांट स्टेम के अंदर वेस्कुलर बंडल्स यानी कि xylem और phloem किस जगह पर मौजूद होते हैं. Just look at this diagram. इस डायग्राम में आपको ये नज़र आ रहा है कि स्टेम का एक स्लाइस लिया गया है. तो स्टेम का एक बहुत बारीक स्लाइस लेने के बाद उसको जब माइक्रोस्कोप के नीचे रख कर देखते हैं तो उसके अंदर हमें ये पता चलता है कि प्लांट स्टेम में xylem एंड phloem किस जगह पर मौजूद हैं.
In stem, the xylem and phloem are present in bundles and they are arranged in a ring form at the outer edge of the stem. These are arranged like rods and give the stem strength to bear the weight of branches and withstand the strain of the wind. ये जाइलम एंड फ्लोएम बंडल्स स्टेम के आउटर एज के करीब एक रिंग की शक्ल में मौजूद होते हैं और इनका काम ट्रांसपोर्टेशन के अलावा ये भी है कि ये स्टेम को बेंड होने से बचाते हैं. The structure of the plant root is a bit different from the structure of the plant stem. When we look at the section of a plant root, we can see that the vascular bundles, namely xylem and phloem, are present in the center. Roots are very strong and supple because the woody xylem vessels are concentrated in the center. And because of this, the roots are able to resist the pulling or stretching force when the stem above is blown about by the wind. Root के सेक्शन में अगर हम देखें तो हमें ये नज़र आता है कि xylem and phloem vascular bundles सेंटर में अरेंज्ड हैं और उनकी इस सेंट्रल अरेंजमेंट की वजह से रूट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं क्योंकि वो पुलिंग एंड स्ट्रेचिंग को रेजिस्ट कर पाती हैं. तो स्टूडेंट्स, हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि प्लांट में मटेरियल्स किस टिश्यू के थ्रू मूव करते हैं और उनकी प्लांट स्टेम और रूट में अरेंजमेंट क्या है, लेकिन हमने ये डिस्कस नहीं किया कि प्लांट के अंदर वाटर किस तरह से एंटर होता है. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ डिफ्यूजन. The movement of molecules from a region of higher concentration to a region of lower concentration is called diffusion. Diffusion is the spreading out of a substance from an area of high concentration to an area of low concentration. If you put a drop of ink in a glass of water without shaking or stirring the water, the ink will spread out or diffuse throughout the water. डिफ्यूजन को समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. अगर आप एक ग्लास पानी के अंदर 1 or 2 ड्रॉप्स ऑफ ब्लू इंक के डालें और उसको स्टर ना करें और ना ही शेक करें और ऐसे ही छोड़ दें, तब भी आप ये देखेंगे कि वो ब्लू इंक आहिस्ता आहिस्ता उस पानी के अंदर स्प्रेड आउट होने लगी है, यहाँ तक कि कुछ देर में आप देखेंगे कि पानी का कलर पेल ब्लू हो जाएगा और वो इंक पूरी तरह डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी होगी. डिफ्यूजन के ज़रिए प्लांट की रूट्स मिनरल्स सॉल्ट्स को अपने अंदर अब्जॉर्ब करती हैं और इसके अंदर किसी भी किस्म की एनर्जी की ज़रूरत नहीं होती. रूट्स के बाहर सॉइल में मिनरल सॉल्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है, जबकि रूट के अंदर मिनरल सॉल्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है. तो इसी कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से बाहर का एरिया, यानी कि जिस जगह हायर कंसंट्रेशन है, वहाँ से मिनरल सॉल्ट्स मूव करके लो कंसंट्रेशन वाले एरिया यानी कि रूट के अंदर एंटर हो जाते हैं और इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहा जाता है. Osmosis is the special name used to describe the movement of water molecules from a dilute to more concentrated solution across a semi-permeable membrane. Molecules of water will diffuse from a region where there are a lot of them to a region where they are fewer in number. That is, from a region of highly concentrated molecules to a region of lower concentration. ऑस्मोसिस एक स्पेशल टाइप की डिफ्यूजन है जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपनी लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव करते हैं. यानी कि जब आप
एक पौधे को पानी देते हैं तो उसकी रूट्स के इर्द गिर्द वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है और रूट्स के अंदर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है। तो वाटर बाहर से रूट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। लेकिन डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के अंदर एक डिफरेंस है और वो ये है कि ऑस्मोसिस थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या चीज़ है, इसको समझने के लिए आपको एक एग्जांपल समझनी पड़ेगी और वो ये है कि जिस तरह से हम चाय को छानने के लिए एक टी स्ट्रेनर यूज़ करते हैं, इसी तरह से हमारी या प्लांट्स की सेल मेम्ब्रेन भी एक स्ट्रेनर की तरह ही काम करती है। और ये सेल मेम्ब्रेन कुछ मटेरियल्स को तो अपने अंदर से पास होने देती है, जैसे कि सॉइल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मट्टी भी है और जर्म्स भी हैं, वो सब के सब इस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं होते। सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल्स रूट की सेल मेम्ब्रेन के थ्रू पास होके अंदर जाते हैं। इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। रूट से ये वाटर ट्रांसपोर्ट होता हुआ सेल टू सेल स्टेम तक पहुंचता है और उसके बाद लीव्स तक पहुंचता है। और लीव्स के अंदर एक स्पेशल प्रोसेस होता है जिसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। और लीव्स से ये वाटर रिमूव होता जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन और सेल्स के थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट होता होता ऊपर पहुंचता जाता है। इसको ट्रांसपायरेशन पुल भी कहा जाता है। Transpiration. It is a process by which plant loses excess water through leaves. Transpiration एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट अपना एक्सेस वाटर यानी कि जो पानी उसके अंदर ज़्यादा मिकदार में मौजूद है उसको लूज़ करता जाता है, यानी कि अपने अंदर से एक्सक्रीट आउट करता जाता है। सोचने की बात तो ये है कि प्लांट्स के अंदर इतना सारा पानी आ कहाँ से रहा है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप ये जान लें कि प्लांट्स के अंदर स्केलेटन तो होता नहीं है। तो प्लांट्स को जब आप पानी नहीं देते तो आप ये देखते हैं कि उसके लीव्स भी और फ्लावर्स भी बिल्कुल मुरझा जाते हैं और स्टेम भी जो कि बिल्कुल स्ट्रेच हमें नज़र आती है, पानी ना देने की वजह से वो भी लूज़ और सॉफ्ट हो जाती है। पानी प्लांट्स के लिए बिल्कुल वही काम करता है जिस तरह से टायर्स के अंदर एयर भरी जाती है। जब टायर्स में एयर नहीं होती तो अपनी शेप खो देते हैं और अपनी स्ट्रेंथ भी खो देते हैं। इसी तरह से जब प्लांट्स को पानी नहीं दिया जाता तो वो भी अपनी शेप और स्ट्रेंथ खो देते हैं। प्लांट्स मुस्तकिल रूट से वाटर को अब्जॉर्ब करते रहते हैं और ये सेल टू सेल ट्रांसफ़र होता होता लीव्स तक पहुंच जाता है। और जब ये पानी लीव्स तक पहुंचता है तो लीव्स के सरफेस पे मौजूद स्मॉल ओपनिंग्स जिन्हें स्टोमेटा कहा जाता है, उन स्टोमेटा के थ्रू ये वाटर लीव्स से एक्सक्रीट आउट होता रहता है और इस एक्सक्रीशन को ट्रांसपायरेशन कहते हैं। ट्रांसपायरेशन एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, यानी कि रूट्स मुस्तकिल पानी को अब्जॉर्ब करती रहती हैं और वो पानी सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट होके स्टेम के थ्रू लीव्स तक पहुंचता है और लीव्स से वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है, यानी कि जब स्टोमेटा के थ्रू वो पानी लीव्स से बाहर आता है तो वो वहाँ से इवेपोरेट हो जाता है। और पानी के इस स्ट्रेट रूट को जो कि रूट से लेकर लीफ तक चलता रहता है कंटिन्यूसली, इसको ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम भी कहते हैं। The speed of transpiration varies with the condition of the plant and its surroundings. When water is in short supply or if the roots of the plants are damaged, the plant slows down the rate of transpiration by wilting. Students, transpiration बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। नॉर्मली अगर पौधे को पानी ना दिया जाए या फिर उसकी रूट्स डैमेज हो जाए तब भी ट्रांसपायरेशन स्लो डाउन हो जाती है और प्लांट जो है वो विल्ट हो जाता है। विल्ट मतलब मुरझा जाता है। लेकिन नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में भी ट्रांसपायरेशन कुछ फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो अब हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन।
light intensity, temperature, wind, and humidity. Light intensity, transpiration increase in bright light. Temperature, transpiration is faster in higher temperatures. And when wind is fast, transpiration is also faster. Humidity, humidity is the amount of water that is held up by the air. Transpiration is slower when the humidity is higher. अगर हम गौर करें तो ये चारों फैक्टर्स बिल्कुल उसी तरह से काम करते हैं जिस तरह से कपड़ों को सूखने के लिए हवा की तेज़ी की या लाइट की इंटेंसिटी या टेम्परेचर के ज़्यादा होने की ज़रूरत होती है. The transport of prepared food and mineral salts in plants is called translocation. The food may travel up or down the stem according to which parts of the plant need it at the time. फोटोसिंथेसिस के ज़रिए जो फूड प्लांट में प्रिपेयर्ड होता है वो ग्लूकोज की फॉर्म में होता है और वो फ्लोएम के थ्रू प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रांसपोर्ट होता है. ये फूड हर उस जगह पर पहुंचता है जिस जगह पर इस फूड की ज़रूरत होती है, चाहे वो अपवर्ड डायरेक्शन में हो या डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और इस प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन कहते हैं. Time now for review of the lesson. So in today's lesson, we have discussed two transport systems, that is xylem and phloem. And we have also discussed the structure of a plant stem and a plant root. After that, we have discussed two definitions which include diffusion and osmosis. And then we discussed transpiration and factors affecting the rate of transpiration, and our last topic was translocation. Home assignment. Answer the following questions. Question number 1. Define diffusion and osmosis. Question number 2. Describe the two sets of tubes which make up the transport system of a plant. Question number 3. Define transpiration and describe the factors affecting the rate of transpiration. Question number 4. Draw a neat and label diagram of cross-section of a plant stem and root. You can find these two diagrams on page number 31 and 32 of your book. To answer these questions, you must watch this lecture twice and read the lesson for at least 2 times. Thank you for watching the video. Allah Hafiz.